ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਆਈ, ਦਰਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु पास। सारी संगत ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु जी। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟि कोटि प्रणाम। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟि कोटि ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਆਈ, ਦਰਦ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਿਓ। ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਵਧਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਘਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਸੁਣੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਂ ਛਤਰਪੁਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਛਤਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਵੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਰੰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛਤਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਤਰਪੁਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸੱਦ ਲੈਣ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸਦੇ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਂ ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੱਤੇ ਕਰਾਏ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਫੇਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਈਓ। ਹਰ ਪਲ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਰਾਣ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਚੱਕਰ ਆਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਧਾਈਓ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਤੋਂ ਆਉਂਗੀ ਘਰ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं, इसके लिए मैं उनका दिल से शुक्राना करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया था कि मेरे को 15 दिन की मतलब 15 दिन के लिए मेरे को यात्रा ब्लेस की थी और मैं खूब अच्छी तरह घूम के आई। मैं दिल्ली में वहाँ गई थी तो मैं बड़े मंदिर भी होके आई और गुरु नानक जी के बंगला साहब भी गई थी, वहाँ भी हमने मत्था टेका। मतलब सब काम मेरा अच्छा हुआ, ये मैंने शेयर किया था। लेकिन अब मैं अपने घर आ गई हूँ, तो घर आते ही मुझे और भी एक दो ब्लेसिंग्स मिली हैं जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये है कि मैं जब पिछली बार अपना सत्संग शेयर कर रही थी तो ये कहना भूल गई थी कि जब भी मैं जितनी बार भी गुड़गांव गई या गुड़गांव से नोएडा गई या गुड़गांव से मैं बड़े मंदिर गई, जब भी मैं निकली तो मैं गुरु जी को याद करती रही और गुरु जी हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे। मेरे आसपास हमेशा 777 की गाड़ी, सामने 777 की गाड़ी, या हारे का सहारा, शाम हमारा, हर हर महादेव, ऐसी गाड़ियां निकलती ही रही। मतलब अगर मैंने, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, हमारे अंग संग रहते हैं, और सच में वो अंग संग ही थे और पूरी मेरी जर्नी में वो मेरे साथ ही रहे। जब भी मैंने उनको याद किया, किसी न किसी रूप में उन्होंने दर्शन दिए। ये बात मैं पिछले अपने सत्संग में शेयर करना भूल गई थी, तो मैंने कहा मैं आज अपने सत्संग में ये बात जरूर संगत जी आपसे शेयर करूंगी। और कल की बात है, यस्टरडे मैं अपने घर पे थी तो सब्जी वाला आया तो मैं सब्जी लेने निकली। जैसे ही गेट खोल के मैं सब्जी वाले के पास गई, उसके ठेले के पास, तो आप मानो सत्संग संगत जी, काली तितली, बिल्कुल इतनी खूबसूरत एक काली तितली वही सब्जियों के ऊपर मंडरा रही थी। मतलब अचानक से, पहले कभी नहीं मैंने ये सीन देखा। आसपास देखी हैं तितलियां, लेकिन ऐसे एक सब्जी से दूसरे, हरी हरी सब्जियां उसके ठेले पे थी और ऊपर से नीचे मेरे सामने मंडराती रही, मेरे आसपास मंडराती रही। तो मैंने कहा जय गुरु जी, आज आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। ये तो मेरे दर्शन हो गए सुबह। और जब दोपहर को या शाम के टाइम मैंने जब खोला अपना यूट्यूब, तो उसमें एक मैसेज भी आया हुआ था कि जब मैं आज तेरे को तितली रूप में दर्शन दूंगा। और तितली रूप में दर्शन देने का मतलब है कि अब सब तेरे कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, कष्ट दूर हो जाएंगे और अच्छा ही अच्छा होगा। तो मुझे सुबह हुए थे तो मैंने कहा जय गुरु जी, आपकी तो लीला ही अपरंपार है। मेरे प्यारे गुरु जी, आप तो बाकमाल हो। और एक और सत्संग में आपसे शेयर करूंगी कि कल ही के दिन मुझे 2 ऐसी खुशखबरियां मिली जिसका मतलब मैं कई दिन से अरदास करती थी। थोड़ा हमारा पैसा कहीं रुका हुआ था। अब मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन गुरुजी तो जान ही जान है, जानते हैं।
तो उसमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो मैं रोज़ अरदास करती, गुरु जी पैसा थोड़ा मिल जाए, या जिसने देना था उसका नाम लेके मैं कहती थी उनको सद्बुद्धि दो कि थोड़ा थोड़ा करके दें। तो कल उसकी शुरुआत हुई, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हमारे लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा है। कम से कम आगे शुरुआत तो हुई, बिगिनिंग तो हुई। इसके लिए भी गुरु जी आपको बहुत बहुत शुक्राना। और एक और शुक्राना, जो मैं इस बार बड़े मंदिर गई थी तो मैं कह के आई थी कि बच्चों पे कृपा करना, आगे भी सब अच्छा अच्छा हो। तो ऐसी न्यूज़, गुड न्यूज़ मुझे अपने बेटे बहू से मिली। अभी मैं पूरा तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन इतना करूँगी कि मतलब मेरा दिल प्रसन्न हो गया, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरुआत है। तो मैं जब वक्त आएगा तो मैं आपके साथ संगत जी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन गुरु जी ने हमारी सुन ली है, बस अब उन पे भी अपना कल्याण वाला हाथ रखें। मेरे बच्चों के सिर पे हमेशा आप बने रहो गुरु जी, उनका कल्याण करते रहो, कृपा बनाए रखो। वो ना समझ में कोई गलतियां करें तो उन्हें क्षमा कर देना गुरु जी, और उनको हमेशा गाइड करना, मुझे भी गाइड करना, और हमेशा अच्छे भाव हमारे मन में रखना। उस खुशी की न्यूज़ सुनाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, और अब हमेशा साथ रहना ताकि सब काम पूरा अच्छा अच्छा हो जाए। वक्त आएगा संगत जी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और एक और शुक्राने तो इतने हैं कि जब करने बैठो तो ध्यान ही नहीं आता है। तो आज भी एक खबर है, मैं मतलब मेरी बेटी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था, बहुत मेहनत कर रही थी, उसकी जॉब से रिलेटेड था कि अगर वो ये कोर्स कर लेगी, एग्ज़ाम दे देगी तो उसको बेटर होगा। तो आज उसका वो हो गया था ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो बहुत अच्छे नंबर उसे 93% मिले हैं। तो गुरु जी इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने उसकी मेहनत, उसकी जो उसने इतनी लेबर किया, उसको आपने सफल किया। इसके लिए तहे दिल से करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, आपका तो हर पल शुक्राना है। हमारे पास ही शब्द नहीं है कि हम आपके कृपा का बखान कर सकें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी तरह गुरु जी हमारे अंग संग रहना और सारे काम तोड़ चलाना, और अपना भाव मेरी फैमिली पे अपना हाथ रखना, वो सबके आपके प्रति सबका भाव बनता रहे और बढ़ता रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप भी गुरु जी पे विश्वास करें। हमारे गुरु महाराज बहुत ही दयावान है, वो अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं। मेरे गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने, सोना सजदाए दरबार अंग संग रहंदे ने। मेरे गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं, हमारी सुनते हैं। फिर भी उनको मानो, उन पर विश्वास करो। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और जल्दी ही नया सत्संग लेके आऊंगी। जय गुरु जी। अब मैं आपका मंत्र बोलती हूँ, संगत जी आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और गुरुहानी आंटी आपको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमारे जो सत्संग है उनको आप शेयर करते हो और दूसरी संगतों को पहुंचाते हो, और आपने हमें इतना अच्छा संगत परिवार दे दिया है। अब तो एक छोटा सा परिवार ही बन गया है। चाहे हम एक दूसरे से नहीं मिले हैं, देखा नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। आवाज़ समझते हैं, आप आवाज़ पहचानते हैं, और क्या अच्छा हो रहा है ये भी हम समझ जाते हैं। क्यों संगत जी, हम लोग अब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। तो इतना सुंदर परिवार देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू रूहानी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी ने इतनी कृपा बरसाई है कि हर दिन उनके जितने भी
मैसेजेस आते हैं, टेलीपैथीज़ आते हैं, वो सब धीरे धीरे हो रहे हैं। कुछ कुछ मैसेजेस देखकर ऐसे लगता था शायद ये मेरे लिए नहीं है, बट इवेंचुअली वो मेरे लिए ही निकलता है। शुक्राना गुरु महाराज। अभी फ़िलहाल मेरे हेल्थ को कुछ ऐसा हुआ कि लो ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट बढ़ गई थी मेरी, एंड वो 1 साल पहले भी ऐसा कुछ हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो गुरु महाराज चाहते थे कि मेरा फुल बॉडी चेकअप हो, एंड शायद मेरे बॉडी में कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम पनप रही थी जो गुरु महाराज को पता था। बीच बीच में वो मुझे ये मैसेजेस देते रहते थे कि तेरे हेल्थ को मैंने ब्लेस किया, जो लाइलाज बीमारी है उसको ठीक कर रहा हूँ, उसके लिए शुक्राना कर। ये काफ़ी बार मुझे ये मैसेजेस आते थे और मैं समझ नहीं पाती थी कि ये गुरु महाराज मुझे क्यों दे रहे हैं। बट कुछ 2-4 दिन पहले मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई जो कि बहुत ही अलार्मिंग दिक्कत थी, जिसकी वजह से अब मुझे फुल बॉडी चेकअप और एक कार्डियोलॉजिस्ट को भी दिखाना है। उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। मुझे पता है गुरुजी का मैसेज आ गया है कि रिपोर्ट अच्छी आएगी, एंड मुझे पूरा भरोसा है गुरु महाराज ने मुझे अंदर ही अंदर ठीक कर दिया होगा या करने वाले होंगे। इसी विश्वास से तो हम जुड़े हैं गुरु महाराज के साथ। हमारा जो बिलीफ, जो विश्वास, अटूट विश्वास है उन पे, बस यही बहुत ज़रूरी है और यही काउंट करता है। गुरुजी हमसे हमेशा सरेंडर मोड में ही रहने को कहते हैं, और मैं इसी सरेंडर फॉर्म में चलने की पूरी कोशिश करी। गुरु महाराज मुझे ताकत दो, शक्ति दो, बुद्धि दो कि मैं पूरी तरह से आपको पूरी तरह से सरेंडर कर पाऊँ। इसी कोशिश में रहती हूँ कि कभी कोई डाउट्स मेरे दिमाग में ना आए। वैसे तो मैं अब गुरु महाराज के ऊपर पूरा ब्लाइंड फेथ करती हूँ, एंड मुझे पता है जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, सब वही करते हैं, वही करवाते हैं, वही बुलवाते हैं। और जो हमारे कर्म कांड हो रहे हैं, जो हमें लोग, अगर हमें कोई दुख पहुंचा रहा है, कोई हमें रुला रहा है, या हमारे नाम को गलत तरीके से पेश करता है, या हमें बदनाम कर रहा हो किसी फॉर्म में भी, हमारी चुगली करता हो या हमारे लिए गलत बोलता हो, तो ये सब एक्चुअली हमारे कर्म काट रहे हैं। गुरु महाराज इस तरीके से हमारे कर्म को अच्छा भी कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ को मैं बहुत मानने लगी हूँ अब। तो अब बुरा नहीं लगता कि अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है या कुछ गलत कर रहा है मेरे साथ, तो मैं समझ सकती हूँ कि शायद मैंने भी उसके साथ ऐसा कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से मेरे साथ हो रहा है। एंड ये भी हो सकता है कि वो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ गलत कर रहा है तो मेरे कर्म अच्छे हो रहे हों। तो ये दोनों ही तरीक़ों से अगर देखा जाए तो इसमें चुप रहना ही बेहतर है, और गुरु महाराज के ऊपर सब छोड़ देना सबसे बेस्ट है। गुरु महाराज सब कुछ टेक केयर करते हैं, सब कुछ संभालते हैं, हमें हर समय दिशा दिखाते हैं। टेलीपैथी के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किस तरीके से लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। सब कुछ वो हमें गाइड कर रहे हैं। हमें सिर्फ समझने की देरी है, हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब हम गुरु महाराज से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे। कनेक्शन बनाने में बहुत टाइम लगता है। अभी मैंने एक संगत जी का मैसेज सुना था कि गुरु महाराज को उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो बहुत लकी हूँ जो आपके ख़ास संगत में आपने मुझे एक्सेप्ट किया। तो गुरु महाराज ने बोला कि वो तो बहुत दूर की बात है, 3 लेयर होते हैं मेरे संगत की, ख़ास संगत की, तो अभी तक तो तुम उसके चरणों की धूल भी नहीं हो। तो मैं भी यही मानती हूँ, क्योंकि उसी वक्त मैंने भी गुरु महाराज को यही बोला था कि गुरु महाराज मैं कितनी लकी हूँ कि आपने मुझे चूज़ किया। तो मुझे ये मैसेज गुरु जी ने दे दिया संग ही 5-10 मिनट के अंदर ही मुझे वो सत्संग सुनाई दिया। मतलब मैं फ़ेसबुक में सुन रही थी कि वो अंकल ने जो बोला गुरु जी को कि हम इतने लकी हैं, तो गुरु जी ने कहा नहीं, तुम कोई लकी नहीं हो, तुम अभी तक तो चरणों की धूल भी नहीं हो, मेरे ख़ास संगत के चरणों की धूल भी नहीं हो। तो मैं ये मानती हूँ गुरु महाराज ने सही कहा, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत जल्द मैं गुरु महाराज के उन स्पेशल संगत जो बहुत क्लोज़ है गुरु महाराज के, जिनकी डायरेक्ट टेलीपैथी होती है, जो गुरुजी उनसे बातें करते हैं, उनको सपनों में दर्शन देते हैं, डायरेक्टली बात करके सब बता देते हैं सपनों में, शायद किसी दिन मैं भी ऐसी कनेक्टिविटी गुरुजी के साथ बना पाऊँ। बहुत आशावादी हूँ मैं। गुरु महाराज को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, गुरुपा मुझे एक्सेप्ट करिए, मुझे अपनी वैसी संगत बनाइए, काश कि मैं बन पाऊँ। गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, वो
इन दिनों मुझे कितनी बार तितली रूप दर्शन दिए हैं। जब जब उन्होंने कहा तब तब जहाँ जहाँ मैं गई, मुझे हर जगह वो मेरे चारों तरफ घूम के तितली रूप मेरे अंग संग थे। बहुत स्पेशल फ़ील होता है गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, बहुत लव्ड फ़ील होता है, बहुत स्पेशल फ़ील होता है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज इतना प्यार देने के लिए। आज मैं एक मीटिंग में गई थी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरी कज़न के साथ मुझे कहीं जाना था, तो सुबह मेरे पास मैसेज आया कि आज जहाँ भी तुझे जो भी करने बोला जाएगा वो तू करना ज़रूर, मना मत करना। तो मेरी कज़न का थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि दीदी एक जगह जाना है, मेरे साथ आप चलोगे? तो मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि गुरुजी का मैसेज मुझे सुबह ही आ गया था। मैंने कहा ये गुरुजी की रज़ाई है। तो मैं जब उसके साथ गई तो वहाँ मेरे कुछ बिज़नेस को लेके या समझ लीजिए करियर को लेके कुछ ऐसा मुझे दिखा। ऐसे एक इंसान से मैं मिली वहाँ, और गुरु महाराज ने ठीक कहा था। वो इंसान फिर बाद में मुझे कांटेक्ट करके उन्होंने बिज़नेस प्रपोजल एंड कोलैब्स के लिए मुझसे मिलने भी आए थे आज। तो हमारी एक मीटिंग आज भी हुई एंड बहुत पॉजिटिव मीटिंग रही, बहुत अच्छी मीटिंग रही। और मैं जब घर से निकल रही थी, मैंने गुरु महाराज के ऊपर सब छोड़ा हुआ था। मैंने कहा अब आप ही देखिए क्या करना है क्या नहीं, मैं जा रही हूँ, इसकी सफलता आपके ऊपर है, जो भी है आपके ऊपर है। तो गुरु महाराज ने ये मीटिंग बहुत अच्छी करवाई, और जो मेरे मैं जिस चीज़ से थोड़ा डर रही थी या थोड़े से हेजिटेशंस थे, वो सारे भी उन्होंने पूरे हल कर दिए। और अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि गुरुजी ने सब कुछ ठीक से करवा दिया। वही करवा रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, वही सब करवाते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो कठपुतलियाँ हैं। गुरुजी ने कहा 2026 मतलब नेक्स्ट ईयर मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत धन कमाऊँगी, बहुत नाम धन मतलब कोई लिमिट नहीं है। गुरुजी ने ये मैसेज दिया है मुझे कि तू अपनी उन्नति की कोई लिमिट नहीं है, समझ ले, उतनी उन्नति तुझे मिलने वाली है। लोग भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कैसे पहुँच गई। हाँ गुरु महाराज, अगर ऐसा होता है, और होगा ज़रूर जब आपने बोला है, तो सब आपकी मेहर है। कभी कोई किसी ने पूछा भी तो मैं यही कहूँगी मेरे गुरुजी की मेहर है। मैं तो वेट कर रही हूँ गुरुपा, मैं कब ये बात बोलूँ कि आज जो भी मेरे पास है, नहीं है, जैसा भी है, जो भी है, सब गुरुजी की देन है, गुरुजी की मेहर है। गुरुपा आप ना होते तो मैं ना होती, हम ना होते, मेरे बच्चे ना होते, कोई कुछ भी ना होता। आप हो तो सब है, आप ही के बच्चे हैं हम। मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको शुक्राना गुरु महाराज। वो रोज़ स्कूल कॉलेज जाते हैं, सेफली जाते हैं, सेफली आते हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे हैं। उनका करियर भी आपको ही देखना है। आपने बहुत बार ये मैसेज दिया है कि आपने उनका सब कुछ सेट कर दिया है, मैं ज़्यादा टेंशन ना लूँ। एंड मैं ये बिल्कुल यही करती हूँ, और आपके ऊपर छोड़ा हुआ है मैंने। मुझे पूरा विश्वास है वो आपके बच्चे हैं, आप उनका टेक केयर ज़रूर करोगे। उनके करियर में, उनके हेल्थ में और सब चीज़ में आप उनके साथ हो, मुझे पक्का पूरा विश्वास है, जैसे आप मेरे साथ हो। आपकी बेटी हूँ, आपके ऊपर है गुरुजी, आप जैसा रखोगे उसी में राज़ी रहना चाहती हूँ, और उसी अपनी रज़ा में हमेशा मुझे राज़ी रखना, यही आपसे निवेदन है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। जो भी हम संगत जी हैं, जो आपको इतना प्रेम करते हैं, इतना मानते हैं गुरु महाराज, आप हमारे खून में हो गुरु महाराज, आप हमारे नस नस में हो। हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं, हमारे अंदर आप ही बसे हुए हो। हमारे दिल की धड़कन, एक एक दिल की धड़कन, हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है, हमारे हर चीज़ में आप हो गुरु महाराज, हर चीज़ में आप हो। हमेशा यूं ही हमें प्यार करते रहना, हमेशा यूं ही हमें गाइड करते रहना। मैं हमेशा सबके लिए यही मांगूंगी, सबका भला करना, सबका भला करना गुरु महाराज, सबका भला करना। इसी के साथ मैं ये अपना सत्संग यही समाप्त करके एक नए सत्संग की तैयारी करूँगी, और आशा करती हूँ जल्द ही एक नए शुक्राना सत्संग के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। जो आंटी जी या अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देना, और जो ये सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको भी अपनी पूरी कृपा दृष्टि में बनाए रखना गुरु महाराज। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा।
जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी हमारी हर तरफ से रक्षा करते हैं, हर 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 संकट से बचाते हैं। गुरुजी बच्चों को हर संकट से बचाते हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी ने इतने इतने ब्लैक मैजिक हमारे बच्चों पे इतने सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरुजी ने बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर ब्लैक मैजिक है गुरुजी, और सच में है गुरुजी। इनकी तबीयत भी रोज कभी क्या अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, सिर दर्द में हो जाता है, अचानक से ऐसे फीवर सा लगता है। गुरुजी सच में सत्संग सुनवा रहे हैं और छोटे में कष्ट कटवा रहे हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं पति की ओर से शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी मैं अपने पति अंकल की ओर से लख लख बार शुक्राना करती हूँ आपका। गुरुजी कह रहे हैं तेरे पति अंकल ना सत्संग सुनते भी नहीं हैं और शेयर भी नहीं करते, उसकी जगह पे तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी बार बार सत्संग में सुनवा रहे हैं, रुहानी आंटी आप मेरा सत्संग जरूर शेयर करना। गुरुजी कह रहे हैं पति अंकल की ओर से शुक्राना सत्संग शेयर करने को। गुरुजी आपको लख लख बार शुक्राना, पति अंकल की ओर से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना। गुरुजी मेरी तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। गुरुपा लख लख बार शुक्राना, आप हमारी सब संकटों से रक्षा कर रहे हैं, सब संकटों से आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तू अपने बच्चों का ध्यान रख, उनके ऊपर जो भी नजर है वो है, उसको उसको पानी से भी उतार सकते हैं। गुरुजी ने बताया उपाय कि पानी सर के ऊपर से नहाते समय सर के ऊपर से 7 बार वार के उसको फ्लश कर दो। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। मैं बच्चों को भी कहा है कि ये पानी वार के नहाते वक्त पानी वार के अपने सिर से फ्लश कर दिया करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हमारी हर संकट से रक्षा करते हैं। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को सत्संग में भी बुलाया और बहुत ही प्यारा सत्संग था। सत्संग में जाने का मौका दिया। गुरुजी ने इतना प्यारा सत्संग करवाया, इतने अच्छे वहाँ पे शब्द चले, गुरुजी से बहुत मन जुड़ा। वहाँ पे गुरुजी ने लंगर प्रसाद में मक्के की रोटी और साग भी खिलाया। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी बुलाकर वहाँ इतना अच्छा लंगर प्रसाद कराते हैं, अपने सत्संग में बुलाते हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। ऐसा लगता है कि हम अपने प्यो के घर गए हैं, अपने पापा के घर गए हैं, वहाँ पे कितना स्वाद हमें लंगर प्रसाद खिलाते हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कह रहे हैं गुरुजी कह रहे हैं कि सब पितरों से माफ़ी मांग। मैं सब पितरों से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी हमारे गुनाह हैं हमें बख्शो, जो भी हमारे कष्ट हैं हमें बख्शो, जो भी हमारे कष्ट हैं हमें बख्शो। शुक्राना करती हूँ पितृ देवता, आपका शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। दिल की गहराइयों से शुक्राना है पितृ देवता, जो भी हमारे देवता हैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ।
गणेश देवता, पितृ देवता, जो भी हमारे शंकर भगवान, जो भी हमारे देवता हैं, सबसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी आपका लख लख बार शुक्राना, सबका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्बत का भला करो गुरु पा, सबके घर खुशियाँ लाओ, सबके दुखों को दूर करो गुरु पा, सबका भला करो, सर्बत का भला करो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।